from across the country now. The NEET cheat family, in fact, of Biwal brothers, the NEET brothers who cheated 22 lakh students. One of the NEET cheat brothers, Dinesh Biwal, a BJP worker, and Mangi Lal and Dinesh Biwal, in fact, have been bought the NEET paper for rupees 30 lakh. Now, one of the accused, Dinesh, in fact, handed NEET paper to his son who was writing the same exam. And this is how the paper began circulating to other students as well on April 29th. 4 students, in fact, of the Biwal family cracked the examination last year. So this is how the entire operation began. And now Republic is exposing all these accused, one of the masterminds, in fact, involved in this entire NEET leak. Now, it is the Biwal family who was involved in this. And now Dinesh Biwal, who is one of the accused, he bought the NEET paper for rupees 30 lakh. He handed this paper to his son who was appearing for the exam. And this is how the paper essentially began circulating to other students as well on April 29th. Now remember, there are 4 students of the same family who cracked the examination last year as well. So of course, now investigation will also go into the links of this family, the 4 students who cracked this paper last year, and was there a leak there as well. Now, it is the Biwal family now has been exposed in this entire NEET operation. It was Dinesh Biwal who passed on this guest paper to his son who was appearing for the exam. And now this is how the paper began circulating to other students as well on April 29th. So this is the timeline. This is the trail of the entire leak operation. It began from this family, and one of the NEET cheat, in fact, the brothers, Biwal brothers, has now been detained. Now, in fact, Republic filed a report from the homes of Mangiwal and Dinesh. The 2 accused in this case have now been detained in the connection with the paper leak case originating from Jaipur. Let's take a look at this Crown report as Republic exposes these NEET cheats. जमवा रामगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। नीट पेपर लीक मामले की जांच जो कि एसओजी कर रही थी, अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जमवा रामगढ़ के जिन 2 लोगों को एसओजी ने हिरासत में लिया, उनका पॉलिटिकल लिंक भी सामने आया, उसको लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मांगीवाल और दिनेश, उनके घर पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले घर की तस्वीर देखिए। एक बड़े एरिया में जो घर है वो उनका बना हुआ है, और ये भी जो आसपास के लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी के साथ वो इस इलाके में रसूखदार भी हैं, मांगीवाल और दिनेश। और ये घर देखकर भी आप तस्वीर लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा आंगन आपको घर के बाहर नज़र आ जाएगा। सामने आप ये 2 मंजिला घर देख रहे हैं, ये भी उनका बताया जा रहा है। झूला इस आंगन में है, और ये जो घर देख रहे हैं जो कि बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ अंदर तक, वो भी घर है। इसके साथ वाला घर आप देखिएगा, जहां पर जो पीली और पिंक पट्टी वाला जो घर है, ये भी उन्हीं का घर बताया जा रहा है। आंगन में 2 एसयूवी जो गाड़ियां हैं वो भी आपको यहां पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मांगीवाल और दिनेश, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि गुरुग्राम के यश यादव से उन्होंने वो पेपर लिया। 30 लाख रुपए में पेपर लिया। उस पेपर को अपना, उनका जो बेटा है सीकर में पढ़ता है, वहां पर दिया। 29 तारीख को पेपर लेने के बाद अगले ही दिन यानी कि 30 तारीख को वो सीकर पहुंच जाते हैं। सीकर में अपने बेटे को वो जो पेपर हैं वो देते हैं। उसकी कॉपी वहां पर सीकर में बनाई जाती है। कॉपी बनाने के बाद जो दोस्त था बेटे का, उसके पास भी वो पेपर पहुंचा। तो कैसे ये पूरा नेक्सस चल रहा था, इसको अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन जब मांगीवाल के पास हम उनके घर पहुंचे, उनके परिवार से बातचीत की, तो उनका कहना है कि ये सिर्फ आरोप है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन हमें ये जानकारी मिली कि मांगीवाल, दिनेश, उनके परिवार में अभी तक 4 से 5 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने नीट क्लियर किया। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं, और परिवार का जो बैकग्राउंड है कि 4 से 5 ऐसे बच्चे जिन्होंने नीट का पेपर क्लियर किया, और उन्हीं के ऊपर जो एक पेपर खरीदने के आरोप लग रहे हैं, उसी कड़ी में अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती हुई नजर आ रही है। और ये घर देखकर, जिस तरीके का घर है, आसपास के घर देखेंगे तो इतने लग्जरी घर आपको
यहाँ पर नहीं मिलेंगे, इतने बड़े एरिया में बने हुए घर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन मांगीवाल और दिनेश का घर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। परिवार तो हालांकि ये बोल रहा है कि सब साजिश है, षड्यंत्र है, लेकिन जिस तरीके से फैक्ट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे गुरुग्राम के यश यादव से वो पेपर जो है वो खरीदा गया और उसके बाद कैसे अगले ही दिन सीकर जाकर वो पेपर जो है वो बेटे को दिया गया और बेटे के दोस्त को दिया गया, जिसके बाद जो मामला है वो प्रकरण प्रकाश में आया। और फ्रंट से आप देखेंगे घर के बाहर कच्ची पक्की सड़क और ये घर की बाउंड्री शुरू होती है और पीछे तक ये जो घर है वो आपको इसी तरीके से नजर आएगा। हालांकि अब क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और एसओजी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में दोनों को डिटेन किया था और उसी कड़ी में सीबीआई ने अब कस्टडी लेकर जिस तरीके से हैंडओवर किया गया इस पूरे मामले में, आखिरकार वो पहला शख्स कौन जिसके जरिए ये जो पूरा पेपर बाहर निकला, और उसी बेसिस पर आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हर एंगल पर हर राज्य तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। Right, viewers, as we continue to expose these NEET cheats, we also spoke to the family members of these accused, Mangiwal and Dinesh. Take a listen. मांगीवाल की पत्नी है? हाँ, उनकी पत्नी। क्या हुआ था? पुलिस जब आई थी तो कुछ बताया था क्यों उनको ले जा रहे हैं? पुलिस का पता नहीं मेरे को, पुलिस आई थी कि कौन आई थी पता नहीं मेरे को, पुलिस आई थी कि कौन आई थी। 2 लोग आए थे पहले, तो आ गए थे घर पे, बोल रहे थे कि हमको मांगीलाल से मिलना है। उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने पूछा मैं कि क्या बात है, कौन हो आप? कि हम उनसे मिलना है, हमको बुलाया उन्होंने मिलने के लिए। तो वो भी आए और सोते हुए मेरे हस्बैंड को, और फिर 2 आदमी आए पहले, तो फिर 10-15 लोग आ गए उनके साथ। मैं कि कौन हो, क्या है, क्या मामला है, बताओ तो सही हमको। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैम बाद में बताएंगे, अभी हम इनको लेके जा रहे हैं। मैं कि आप कहाँ लेके जा रहे हो इनको? कि बाद में बताएंगे, अभी पता नहीं, हम कुछ बता नहीं सकते। कुछ नहीं बताया उन लोगों ने। आरोप लग रहे हैं कि पेपर उन्होंने खरीदा, 30 लाख रुपए में पेपर खरीदा, गुरुग्राम के यश नाम के, यश यादव नाम के शख्स से पेपर खरीदा। ये सब झूठी है, साजिश कर रहे हैं मेरे पति के खिलाफ। ये सब कुछ नहीं पता मेरे को इस चीज़ के बारे में। आपके परिवार के दूसरे बच्चों ने भी नीट का पेपर क्लियर किया? मेरे जेठ के 2 बच्चे करे हैं और दूसरे परिवार कौन है? मेरा जेठ है, उनके मतलब वो तो गुजर गए बेचारे, और उनकी 2 बेटियां हैं वो सिलेक्ट हुई थी, और मेरे 2 बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। कभी घर में पढ़ाई को लेकर या इन पेपर्स को लेकर चर्चा हुई आप लोगों के बीच में? नहीं भैया, हमारे तो कुछ भी चर्चा कौन नहीं है, बार हम कहीं भी कौन नहीं। 28 या 29 तारीख को कोई सीकर गया था आपके परिवार से? नहीं भैया, हम तो पहले ही आ गए छो उधर से। हम तो कोई 24-25 तारीख नहीं आ गए छो, खाली कर कुरूर कर। अच्छा। मैं आखा तो कोई कौन गया? उसके बाद कोई नहीं गया? कोई नहीं गया हमारा तो। विकास आपके परिवार का जो बच्चा है वो पढ़ता है सीकर में? नहीं, कौन पढ़ा? वह भी पढ़ाई करे, जब सिलेक्ट हो जब आगो, वह भी कौन बुके पढ़ाई में चे कॉलेज में कोड़ी में। अच्छा, यही छो कौन। तो अब जो आरोप लग रहे हैं उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके ने 30 लाख रुपए में खरीदा और उसके बाद खुद सीकर जाकर दूसरे लोगों को भी दिया? सब ये कुछ नहीं पता है मेरे को, सब साजिश रच रहे हैं। ये ऐसा कुछ भी नहीं आया, ना कुछ हुआ हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारा। क्या करते हैं आपके मामले में कोई हाथ नहीं है हमारा। आपके पति का व्यवसाय क्या है, कामकाज क्या करते हैं? प्रॉपर्टी डीलर है। अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी कार्यकर्ता हैं, जुड़े हुए हैं किसी राजनीतिक पार्टी से? नहीं, मेरे हस्बैंड कुछ किसी से नहीं जुड़े ऐसे। अच्छा, दिनेश जुड़े हुए हैं क्या बीजेपी से? अब ये पता नहीं इनका भी जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, ये मेरे को अच्छे से पता युवा नहीं। मंत्री को लेकर तमाम जो फोटोज हैं वो आ रही हैं। अब मेरे को तो ये तो पता नहीं है भाई। देखो मेरे देवर भी वही हैं, प्रॉपर्टी डीलर ही हैं, और कुछ नहीं है मेरे देवर। शिक्षा मंत्री आपके घर पे आए हैं क्या? कभी कौन आया हमारा घर? तो मैं तो जानू भी कौन। देखो, जयपुर के जमवा रामगढ़ में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। मांगीवाल और दिनेश को एसओजी ने डिटेन किया, जो कि अब जांच सीबीआई कर रही है, तो सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। उन्हीं के घर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और दिनेश की पत्नी इस समय हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रजनी। रजनी जी, कब आई थी एसओजी और क्या कुछ हुआ, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि भाई राम ऐसे बोल रहे थे, भाई हम आपका ना मेरे को ये रेंट पे लेना है। तो बोला भाई रेंट पे लेना है तो भाई हम बुला देंगे, अभी आप नीचे ही रहो, ऐसे चढ़े क्यों जा रहे हो? तो भाई हमको रेंट पे लेना, इनको रेंट पे लेना है तो बुला लो आप। तो फिर बुला लिए, तो फिर मैंने बोला आ जाएंगे नीचे, क्या है क्या नहीं है, हमको तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या है कौन नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने बुलाया ऊपर ही, ऐसे बोल दिया बस। कुछ नहीं पता हमारे को हो रहा है उसके बाद। तो दोनों को ले गए, आपके पति को भी? और पति को यहाँ से नहीं लेके गए,
बाहर से लिए उनको बाहर से शायद। लिए। हाँ, आरोप बताए क्यों ले जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया? कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, जो आरोप अब लग रहे हैं कि उन्होंने पेपर लीक किया, गुरुग्राम के एक शख्स से खरीदा 30 लाख रुपए में नीट का पेपर। मैं नहीं मानती इस चीज़ को, बिल्कुल भी नहीं मानती मैं। बिल्कुल भी नहीं पता मुझे, और ना मेरा आदमी ऐसा है, ना मेरा बच्चा ऐसा है, कुछ ही नहीं पता मुझे। कहाँ पढ़ता है आपका बेटा? पढ़ता है ना, सिक्कर में पढ़ा के लाई हूँ मैं खुद। सीकर में नीट की ही तैयारी कर रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, तो आपके क्या परिवार के कुछ और बच्चे भी इस तरीके से नीट की तैयारी करके सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, सरकारी में नहीं है। नीट की तैयारी उन्होंने हाँ की थी, हाँ नीट की तैयारी सभी करते हैं सब। हमारे बच्चों भी कर लिए तो क्या हो गया। तो अभी कहाँ पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? अभी तो नहीं, अभी तो पढ़ रहे हैं, अब लेंगे कोचिंग भाई पढ़ाने के लिए, बच्चों तैयारी करेंगे अब। जेट के भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर हाँ क्लियर हाँ हाँ क्लियर किया। तो वो कहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं? कर रहे हैं ना पढ़ाई। अभी मेरे को पता नहीं है कौन कौन सी जगह है, मैं तो पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो मेरे को गाँवों का पता रहे, मुझे पता नहीं है। अच्छा, तो आपके पति क्या काम करते हैं, उनका व्यवसाय क्या है? अच्छा है उनका व्यवसाय, क्या काम करते हैं? ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये फाइनेंस का काम है इनका। किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जुड़े हुए हैं? अब जुड़े हुए तो ये तो पता नहीं है, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं जो मैं कुछ जानती हूँ। पॉलिटिक्स मैं तो कुछ भी नहीं जानती, पॉलिटिक्स जानती ना, कोई नेतागिरी जानती, मैं तो कुछ नहीं जानती। कभी किसी क्वेश्चन पेपर के बारे में घर में चर्चा होती थी, बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई चर्चा होती थी? कुछ ही नहीं है, हमारे तो पढ़ते थे और बस याद करते जो थे। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पेपर खरीदा और उसके बाद अपने खुद जाके बेटे को दिया, 29 तारीख को उनको पेपर मिल गया। यहाँ का ही कौन है, खुद जाके दिया और फलाना, कुछ ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। 28-29